Hello everyone, this is Nikita Bhoyer and today we are going to learn nutrition in plants from class 7th. We all know that living things need food for their growth and for getting energy, for repairing and maintenance of their body. Now, we eat food, but have you ever noticed how plants make their own food? Have you seen them going into the kitchen and making something for them? Never. So, here we are going to study about how plants get their food and which are different types of modes of nutrition in plants. So, firstly, what is nutrition? Nutrition is the process by which organisms obtain their own food for growth, repairing body and their maintenance. There are two types of nutrition, autotrophic and heterotrophic. Now, we will discuss about autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition. Plants make their own food using sunlight, carbon dioxide, water, chlorophyll. This process is known as photosynthesis. इसका मतलब ये है कि photosynthesis यानी जो पेड़ होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो सनलाइट यानी सूरज की रोशनी की मदद से, पानी से और उनके अंदर जो क्लोरोफिल होता है, ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है, उसकी सहायता से अपना खाना पकाता है. तो आप इसे बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस. फोटो यानी रोशनी, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स प्रक्रिया या फिर प्रोसेस. द प्रोसेस इन विच plants make their own food is known as photosynthesis. Here we can see the representation of that chemical process is given like this. Carbon dioxide plus water gives glucose and oxygen. Now, what is the importance of this photosynthesis process to us? It produces food for plants, releases oxygen, maintains oxygen कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस इन नेचर. यानी जो प्लांट खुद के लिए खाना पकाता है, एट द सेम टाइम हम भी पेड़ पौधों से ही मिलने वाला खाना खाते हैं, तो इनडायरेक्टली वो एनर्जी हमारे पास भी आती है. उसके बाद हमने बोला कि इट रिलीजेस ऑक्सीजन, मीन्स हमें पता है कि जो आसपास की कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसके मदद से वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और उसके बदले में हमें देते हैं ऑक्सीजन. उसके बाद हमने देखा कि मेंटेन्स द ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस इन नेचर. कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसके बदले में ऑक्सीजन देते हैं. इस तरह से अपने आसपास जो हवा होती है उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस मेंटेन होता है. उसके बाद हमने देखा कि दिस प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल एनिमल्स. एज वी ऑल हैव ऑलरेडी स्टडीड, फूड गिव्स अस एनर्जी. दैट मीन्स प्लांट्स ही हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जो उन्होंने फोटोसिंथेसिस की वजह से अपने आप में तैयार किया है. Why only plants perform photosynthesis? अब ये भी सोचने की बात है कि प्लांट ही क्यों फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी तो सनलाइट में खड़े हो सकते हैं, फिर हम क्यों नहीं खाना पकाते? तो क्यों? तो देखो, plant contains chlorophyll. That's why we see the plants are green in color. This green pigment is also called as chlorophyll and this is present mostly in the leaves. This traps the sunlight. यानी जो green pigment होता है उसका काम होता है sunlight को trap करना. Here in this diagram we can see photosynthesis process. The light is taken from the sun. This is getting trapped into the chlorophyll. Carbon dioxide is taken from the air. Water is taken from the soil with the help of roots. Oxygen is released and glucose is formed. Here is another diagram. The same thing is explained here too. हमें क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे हमारी नोज होती है या फिर हम लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते कहाँ से है या फिर ऑक्सीजन छोड़ते कहाँ से है? तो ये है उसका एक आंसर कि प्लांट्स के लिप के नीचे स्टोमेटास होते हैं. स्टोमेटास आर स्मॉल ओपनिंग्स
Stomatas are small openings that are found beneath the lid. It allows the exchange of carbon dioxide and oxygen. So this was autotrophic nutrition about plants. Now कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं. कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जैसे हम भी खाना नहीं पका सकते, यानी फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म कर सकते. तो हम क्या करते हैं, हम हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आ जाते हैं. फिर ऐसे कौन से प्लांट है या फिर ऐसे कौन सी वनस्पति होती है अपने आसपास जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं या फिर यानी वो मोड है उनका. Some plants and animals cannot make their own food. जो खाना नहीं पका सकते खुद फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके, वही इस प्रकार में आते हैं. पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. यहाँ पे क्या होता है, कसकुटा कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, सो इट ऑब्टेन फूड फ्रॉम अनदर लिविंग प्लांट. कसकुटा यानी अमरवेल जिसे हम कहते हैं, मोस्टली बड़े बड़े ट्रीज के ऊपर आपको दिखाई देंगे. जो मोगली वगैरह आप देखते हो उसमें आपने देखा होगा कि मोगली उस कसकुटा जो होती है ना उसको लटकते हुए घूमता है या फिर झूमता है, तो वही है कसकुटा. तो वो अपना खाना पका नहीं सकती, खुद बना नहीं सकते, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकती. तो वो क्या करते हैं, दूसरे पेड़ से ही अपना खाना ऑब्टेन करती है. जैसे हमारे यहाँ पे मस्कीटोज हमारे ऊपर बैठकर अपना ब्लड लेते हैं, वैसे ही ये पैरासिटिक प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड एब्सॉर्ब करते हैं होस्ट प्लांट से. उसके बाद है सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ये भी ऐसे पौधे होते हैं जो खुद का खाना नहीं पका पाते या फिर खुद फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म करते. तो ऐसे एग्जांपल है मशरूम, मोल्ड्स. दिस ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर. यानी ये जो पौधे या फिर ये जो मशरूम और मोल्ड है, ये क्या करते हैं, जनरली जो डेड डिकेइंग यानी सड़े हुए चीज़ों पर अपना खाना, उसके ऊपर रहकर अपना खाना पा लेते हैं, उसमें से एब्जॉर्ब कर लेते हैं. उसके बाद है इंसेक्टिवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन. यहाँ पे क्या होता है, प्लांट्स लाइक विनस फ्लाईट्रैप एंड पीचो प्लांट, दिस ट्रैप्स द इंसेक्ट्स टू ऑब्टेन नाइट्रोजन. जो दलदल होता है जहाँ पे, वहाँ पे ऐसे पौधों को नाइट्रोजन की कमी होती है, उस वजह से इनको इंसेक्ट्स को ट्रैप करना पड़ता है अपने नाइट्रोजन की फुलफिलमेंट के लिए. उसके बाद हम देखते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इसमें क्या होता है, लाइकेंस राइबोजियम बैक्टीरिया इन लेग्यूम रूट्स बोथ बेनिफिट्स फ्रॉम ईच अदर. लाइकेन जो होता है वो दूसरे पौधों पर रहकर अपना खुद का जो खाना है वो एब्जॉर्ब कर लेता है. और दूसरा हमने बताया कि राइजोबियम बैक्टीरिया, ये मोस्टली लेग्यूम्स में रहता है. लेग्यूम्स के जो रूट्स होते हैं उसके अंदर छोटे छोटे गांठें बना लेता है और उसके अंदर रहकर वो वहाँ से खाना लेता है और उस पेड़ को भी उसका बेनिफिट होता है. तो इस तरह से हमने देखा है कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है. We can see Kaskuta here, which is parasitic plant, mushroom, which is saprophytic plant, then pitcher plant, it is insectivorous plant. Here in this example, we can see this is moss, this is we can see the nodules formed in the legumes. That means this is rhizobium bacteria, and here we can see the lichen. Thank you.